ये बोर्ड रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, को पार्टनरशिप भी कर लिया था, Yes, sir. Yes, sir. वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप तक किया था. Yes, sir. This is Yes, sir. prevalent in Yugoslavia, so I did not to repeat that. Now next important form of workers' participation is quality circles. What happens ki a quality circle is created. Quality circle is a participatory management technique that enlists the help of employees in solving problems related to their own jobs. Circles are formed of employees working together in an operation who meet at intervals to discuss problems of quality and to devise solutions for improvements. एक ग्रुप बनाते हैं जिसको एम्प्लॉइज का जो एक ही तरह के जॉब में है, और वो लोग जो क्वालिटी सर्विसेज है या जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जो कस्टमर्स का कोई कंप्लेंट्स है जिसको वो भी फील करते हैं कि इसको रिमूव करना, इम्प्रूव करना जरूरी है, तो इस तरह के जो वो डिसीजंस लेते हैं employees by forming quality circles. This is also one of the ways of workers' participation in management. सर इसमें ग्रुप बनाया जाता है एम्प्लॉयज का जो लोग एक तरह के काम में हैं. हाँ, working in an operation, circles are formed of employees working together in an operation. They meet at intervals, discuss the problems to improve the quality and devise the solutions for improvements. ठीक है ना? Yes. The purpose is कि अगर आप उनको एक क्वालिटी सर्किल बना के उनको आपस में म्यूचुअली कैसे क्वालिटी इंप्रूव किया जाए डिस्कस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो दे से सो मोर इंटरेस्ट एंड डिवोशन टू द वर्क. वो चाहते हैं कि इस तरह का हो, इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो, उसको उसका अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है. This quality circle concept was first introduced by BHEL in India in 1981. And the father of this quality circle techniques is Koro Ishikawa. He was a professor in Tokyo University. And he thought that if you allow the workers to discuss about the quality, and they will show more devotion to the work, and that will lead to improvement. This is how it works. Advantages इसका ये है कि adaptability to changing और emerging market conditions. जो emerging market conditions है, जो new requirements है, उसको समझने का adaptability का इसमें opportunity मिलता है. Adaptable to changing or emerging market conditions and to environmental and other governmental regulations. कोई नया गवर्नमेंटल रेगुलेशंस है जिसको कोप करना है, पर्टिकुलरली जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते रहता है, कार्बन एमिशंस का तरह तरह का. Then it leads to higher productivity, enhanced market image. If you are responsive to the changes to the market needs, your market image will enhance. Elimination of defects. जो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको अगर क्वालिटी सर्किल में बैठ के उसको एसेस करके उसको रिमूव किया जाता है, तो एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेस्ट, reduced costs and better cost management, and that will lead to higher profitability. Or one of the most famous example is quality management is Toyota. Toyota में इस पर बहुत
क्वालिटी सर्किल्स बना के उसको इम्प्रूव कराने का, मार्केटिंग नीड्स का बहुत किया जाता है। एक दूसरा मोटिवेशनल टेक्निक्स और वर्कर्स के पार्टिसिपेशन का है जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। Job enlargement means to increase the task of an employee performed by him in a single job. जितना काम वो ऑलरेडी कर रहा है उससे उसका जॉब कुछ अधिक बढ़ा दिया गया, उससे कुछ अधिक काम दिया गया उसको। Under this technique, a few tasks are added to the existing job which is similar in nature. इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें आपके टास्क को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। It increases the degree of satisfaction in workers because when the job is enlarged, one employee is assigned the whole or the maximum part of the project. In this way, their contribution to that particular project is appreciated. ठीक है? सर जॉब इनलार्जमेंट तो हो गया कि जितना काम कर रहा है उससे ज्यादा दे देना, और जॉब इनरिचमेंट क्या हुआ? उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसमें डिसीजंस लेने का, उसमें आपको ये क्वांटिटेटिव एनरिचमेंट है, काम आपको जितना था उससे अधिक कर रहे हैं, अधिक दे दिया गया। और Yes. एनरिचमेंट में जो काम है उसका क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होता है। द जॉब enrichment is a job designed strategy applied to motivate the employees by delegating them extra responsibilities. जितना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा, कुछ और पावर आपको डेलीगेट कर दिया जाएगा, किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। In short, we can say that job enrichment means upgrade the quality of a job and to make it more exciting, challenging, and creative. ये लास्ट 4 सेंटेंसेस भी इसका कंक्लूजन है। Both job enlargement and job enrichment are regarded as motivational tools for the employees used by the management. However, employees find job enrichment is a far better tool than job enlargement. Job enrichment gives planning, controlling, decision making powers to the job holder. It helps them to grow and develop, as opposed to job enlargement, which is just a tactic of management to increase the workload of existing employee. समझ गए इसको? Yes, sir. जॉब एनलार्जमेंट के बनिस्पत जॉब एनरिचमेंट को एम्प्लॉइज या यूनियंस ज्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा responsibility, you are given more freedom in planning, controlling, decision making, है ना? Job and in job enlargement में simply you are given some additional workload, but here you are giving some more authority to control. So we have learned about job enlargement. Yes, sir. एक दूसरा टेक्निक है empowered team और autonomous team. अब इन लोगों को कुछ अधिक पावर, जैसे जैसे जॉब एनरिचमेंट था उसी टाइप से इनको कुछ अधिक गोल्स दिया जाता है and work appear all the days. Autonomous teams meaning work groups granted the organizational latitude or establish their own internal goals. होता क्या है कि ये एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स बना दिया जो एक साथ काम कर रहे हैं। दे हैव द कॉर्पोरेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनैक्ट देयर ओन डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. They are given sufficient autonomy.
They are free to operate in their own field and take their own decisions. अब ऐसे लोगों को जिनका एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने में सक्सेस रहे हैं, उन लोगों को धीरे धीरे उनका एक टीम बना के उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग खुद से डिसाइड करिए, यू फाइंड आउट योर ओन वेज एंड डू इट। ठीक है ना? इससे भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है। सो एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं ये लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इनको जिस एरिया में दिया जाएगा, he would be given certain sphere of it, जहां पर कहा जाएगा कि ठीक है आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि कैसे काम होगा, कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत है। दे आर गिवन फ्रीडम एंड दे आर गिवन अथॉरिटी, द पावर टू टेक डिसीजंस। मतलब सर उस एम्प्लॉय को एक पावर दे देना सर। उस एम्प्लॉय को छूट देना कि आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करना कि भाई ये जो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के हित में करेगा। इसको वो सब, उसको बार बार हर चीज के लिए अप्रूवल लेने का, पूछने का या जरूरत नहीं पड़े, वो खुद से डिसाइड कर सके, तो क्विक भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। An empowered employee has the authority and responsibility to make decisions rather than needing to get approval or instructions from a manager. So हर बात के लिए instructions लेना कि इसमें क्या करें, they can find it that क्या करने की जरूरत है और वो अपने हिसाब से वहाँ कर सकते हैं। If an empowered team, in an empowered team, each teammate has a voice in group decisions. अब टीम में जितने आदमी हैं वो ग्रुप डिसीजंस में सब अपनी बात रख पाता है। Team self-organizes around a leader instead of reporting to a manager and may make changes to their project or product at will. So वो जो चाहे भी change कर सकता है उसमें at their own will. An organization structured around empowered teams will have a relatively flat hierarchy. अब जो hierarchy जो होता है नीचे से ऊपर तक जाने का, वो नहीं होगा, वो उन्हीं लोगों के चारों तरफ होगा, वो upper level में नहीं होता है। इसको समझ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस यस सर। एक है total quality management. This is a method by which management and employees can become involved in the continuous improvement of production of goods and services. It's a combination of quality and management tools aimed at increasing business and reducing losses due to wasteful practices. अब ये मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलके कैसे क्वालिटी इंप्रूव किया जाए, कैसे टोटल क्वालिटी हमारा जो है उससे ज़्यादा अच्छा हो, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी मार्केट में हमारा शेयर बढ़े, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस को हम खत्म कर सकें। इसके लिए जो मेथड अप्लाई जाता है, जो इसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली क्वालिटी पे कंसंट्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है। इट इज अगेन मोटिवेशनल। अनदर वे अब क्या है कि कुछ पार्टिसिपेशन जैसा कि फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, एक हम लोगों ने देखा था कि उनको शेयर कैपिटल देके और उनको उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका इलेक्शंस होने का, मैनेजमेंट में उनका शेयर बढ़ाने का प्रयास किया गया था। दूसरा ये है फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। Financial participation is the involvement of employee in the financial decisions of the organizations. Organizations का कोई भी अगर financial decisions होता है तो उसमें वर्कर्स का भी व्यूज लिया जाए, उसका भी पार्टिसिपेशन हो, ये देखा जाता है। Financial participation mainly involves employees to know the decisions regarding profits and also sometimes about the condition of equity capital in an organization. अब वो वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह के डिसीजंस में जो उसके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता हो, उसका इक्विटी कैपिटल का अफेक्ट करता हो। इसमें अगर वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, उसके व्यूज को भी कंसीडर किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन।
है ना? Yes, yes. They sir. participate in financial decisions. Yes. So total quality management में वही था ना कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय अब और उसे एम्प्लॉयर good- दोनों. हाँ, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करे, इसके लिए दोनों साथ डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं या विचार करते हैं. Yes, sir. और फाइनेंसेस में उसका इक्विटी कैपिटल क्या है, उसका ये क्या क्या कहते हैं, प्रॉफिट का क्या हालचाल, क्या हिसाब किताब है, इस सब में जब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है तो दिस इज फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन. A workers consultative participant involves a higher degree of sharing of views of the members and giving them opportunity to express their feelings. In the process, members are consulted on matters relating to welfare amenities, adoption of new technology, and the problems emanating from it, safety measures, etc. जब कोई सेफ्टी मेजर्स लेना हो, कोई वेलफेयर स्कीम्स लाना हो, तो इसमें वर्कर्स को भी अपना व्यूज रखने का कि किस तरह का स्कीम्स अच्छा रहेगा, किस तरह का स्कीम्स हमको लाना चाहिए, उनके व्यूज को लेना, उसको कंसीडर करना, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपना व्यूज रखें. दिस इज कॉल्ड कंसल्टेटिव. Sir, उनका views regarding what? उनके मैटर्स रिलेटिंग टू वेलफेयर, adoption of new technology, safety measures, ये सब जो है इस पर. एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन भी है. अब आपको मैनेजमेंट के साथ अगर ग्रेटर डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए मिलता है मैनेजरियल वर्क में, तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन. Here there is greater degree of sharing authority and responsibility of managerial work, allowing workers a little more autonomy in exercising administrative and supervisory powers. समझ गए? जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसमें आपको हिस्सा लेने के लिए अगर दिया अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैनेजरियल काम का अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन. So workers complete ownership में भी तो ऐसा ही था ना कि मैनेजमेंट का काम वर्कर कर सकता था. टोटल मैनेजमेंट, यहाँ पर वर्कर्स Total- टोटल वो वही लोग चलाता था, मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में टोटल मैनेजमेंट था. अच्छा. यहाँ आपका इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, आपको थोड़ा सा मैनेजरियल फंक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया शेयर करने के लिए, आप उसके साथ मैनेजर्स के साथ कर रहे हैं, तो दिस इज you are participating in the management and this is called administrative participation. Complete ownership में होता था कि पूरी की पूरी फैक्ट्री या यूनिट जो है वो वर्कर्स के हाथ में, वही चला रहे हैं उसको. ये वो पर्टिकुलरली सिक यूनिट्स सबको रिस्टार्ट करने के लिए बहुत जगह किया गया. Yes. और ये डिसाइसिव पार्टिसिपेशन, ये डिसाइसिव सर पार्टिसिपेशन इससे में प्रमोशन होता है सर, क्या, इससे इसके पहले वाले में से? आप इससे आप मैनेजमेंट और वर्कर्स का मैनेजरियल जो काम है उसमें आपका पार्टिसिपेशन हुआ, आपका भी दखल है देना हुआ, आप भी उसमें भाग ले रहे हैं, आप भी मैनेजरियल काम कर रहे हैं. दो यू आर नॉट ए मैनेजर, यू आर अ वर्कर, but you have been given the responsibility of managerial responsibility. That is administrative participation. ये decisive participation जो है, this is the highest participation. It is the highest level of participation where workers are given opportunity to take part in decision-making power activities. As the name suggests, the decision-making power at this level is complete and the delegation, जहाँ पर कि आपको एकदम डिसाइसिव, आप ही को, आप अपना मैनेजमेंट आपको पावर डेलीगेट कर दिया कि आप ही डिसाइड कर दीजिएगा जो करना होगा, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑथराइज्ड, इंटरेस्टेड टू टेक द डिसीजन. So this is called decisive. You are supposed to take the decision on behalf of the management. Power has been delegated to you. This is decisive
पार्टिसिपेशन। तो ये सब मोटिवेशनल टेक्निक्स है, उसको अलग अलग तरीका से, कभी उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने दे दिया, कभी फाइनेंसेस में दे दिया, कभी कंसल्ट कर लिया उसको, तरह तरह से एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हम भाई ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, हमारा भी ये पूछ है, तो वो मोटिवेशन से काम करता है। ये जो फॉर्म्स जो थे, यही 16-17 जो मैंने उस दिन लिखा था, so we have one by one dealt with all of them। ठीक है, यस सर। यस सर। लेकिन अब ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसके कुछ वजह है जिसके, तो ये क्या लिमिटेशंस है इसका, हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी जाने। पहला फैक्टर उसका ये है कि लिमिटेड नॉलेज एंड एजुकेशन। वर्कर्स को क्या होता है, the knowledge and education of workers are limited to the area of their specialization of work। जिस एरिया में काम कर रहा है उसको जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, वो उसी एरिया से कंसर्न है। पूरे ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन चलाने का उसको पूरी नॉलेज नहीं होता है, उसका एजुकेशन नहीं होता है ना। दे लैक नॉलेज इन मैनेजरियल ऑपरेशंस एंड टू पार्टिसिपेट। अब मैनेजमेंट में आपको पार्टिसिपेट तो करना देगा, लेकिन वो मैनेजरियल फंक्शंस को कैसे किया जाए, मैनेजरियल इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, उसका एक्सपर्टीज अगर आपको नहीं है तो योर पार्टिसिपेशन विल नॉट बी मीनिंगफुल। सो दैट इज वन लिमिटेशन, and limitation is that workers have limited knowledge and education। they know about their area of work, but they don't know about the whole organization, particularly the managerial functions। so their participation in management, this acts as a limitation in their participation in management, है ना। पहला Yes। limitations आप समझ रहे हैं, due to knowledge and education। जानकारी आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का, पर्टिकुलरली मैनेजरियल फंक्शंस का नहीं है, आप तो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी है आपको। तो इस वजह से एक लिमिटेशंस ये है। दूसरा होता है एक बॉसिज्म, डोमिनेशन। मैनेजमेंट वाले का लगता है कि ये तो मेरे अंडर का एम्प्लॉई है, ये वर्कर है, हम मैनेजर हैं। तो एक बॉसिज्म, एक डोमिनेट करने का जो मैनेजर्स का टेंडेंसी है, उस वजह से भी एक कंजीनियल एनवायरनमेंट पार्टिसिपेशन का नहीं बन पाता है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, दिस डोमिनेशन एंड बॉसिज्म। डोमिनेशन एंड बॉसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप होल्ड्स बैक द सक्सेस and effectiveness of workers participation in management। ये भी एक कारण होता है जहां पर कि पार्टिसिपेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, because your tendency to dominate, your tendency to bossism will act as a negative factor, है ना। एक और जो एरिया है, जो कारण है, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोनों का, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, दोनों के इंटरेस्ट में कभी कभी कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, दोनों के इंटरेस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोनों का दो तरह का इंटरेस्ट अगर है, conflict of interest between employees group and employers group affect the effectiveness of workers participation। अब वो चाह रहे हैं कुछ, आप चाह रहे हैं कुछ, तो उस पॉइंट पर भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। आप कुछ सेफ्टी मेजर्स लाना चाहते हैं, आप कुछ नया इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वर्किंग कंडीशंस में, मैनेजमेंट उसमें नहीं इंटरेस्टेड है, तो द पार्टिसिपेशन विल नॉट बी इफेक्टिव, है ना। सो कॉमन इंटरेस्ट होना भी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने से भी ये
वर्कर्स पार्टिसिपेशन में बाधा पहुंचेगा। ठीक है ना? मतलब सर दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग व्यूज रखते हैं, दोनों में कोई बात नहीं बन रही है, तो उनको उनका इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो दैट विल नॉट होल्ड गुड। और चौथा एक कारण है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी और उसके पहले भी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी, कि जो वीकनेसेस ऑफ ट्रेड यूनियन, जो हम लोग के यहाँ का ट्रेड यूनियन है वो उनमें इंटरनल राइवलरीज बहुत है, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इन सब वजह से, और most of the time trade unions are not strong enough to participate in management and express their views and opinion because they lack finance, specialized knowledge, conflict of interest between different trade union groups, domination of political parties. अब वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बनस्पत की ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स के एजेंडा से। hampers the effectiveness of workers participation in management। ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और whatever। तो लिमिटेशंस भी हम लोग समझ गए। शुभांगी सिंह सिन्हा, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 चारों जो लिमिटेशंस हम लोगों ने अभी बात किया उसको आप समझ गए? यस सर, यस सर। तो यही इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इट्स फॉर्म्स पढ़ना था आप लोगों को, लिमिटेशंस भी जानना चाहिए कि क्यों, क्या लिमिटेशंस है। when you write about the concept then you should write about the limitations also। ये चैप्टर तो इन दिस वे कंप्लीट हो गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यस सर, अब कितना बचा है? अब तो दूसरा चैप्टर शुरू करना होगा, वो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, ट्रेड यूनियन एक्ट से। तो आज यही खत्म करें? यस सर। यस सर। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज नया टॉपिक का आज शुरू नहीं करेंगे। यस यस सर। फॉर्म्स जो है बहुत सिंपल है, उसके हेडिंग से ही उसका सब बाकी चीज पता चल जाता है। डिसाइसिव पार्टिसिपेशन बड़ा आपको इफेक्टिव, बड़ा आपको डिसीजन लेने के लिए दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन आपको मैनेजरियल काम में हस्तक्षेप करने का, उसमें भाग लेने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ऊपर भी जो था कंप्लीट कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने का, कैसे आप वर्कर्स जा सकते हैं। So we have covered everything। यस सर। Shivani, do you have any question, any problem anywhere? नो सर, समझ में आ गया। Thank you। This is your 3rd class? यस सर। Okay। चलते हैं, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। तो लॉकडाउन खत्म होने रहा है, थैंक यू सर।